welcome back again in geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, as you know that we have started a new chapter and the chapter name is agriculture. Now in this chapter, in the previous video, we have completed two topics. The first topic is the introduction part of the chapter and the second topic is the factors that influence the agriculture. Now students, in this video session we are going to understand about the types of farming that is practiced all over the world. Now students, look at in your book. Now you see that the types of agriculture. Depending on the factors listed above, farmers around the world practice different types of farming. Some of the more common types of farming are described below. Okay, now students, before starting this topic, now you understand about the types of farming. Now according to the paragraph of or your book, now this paragraph tells us about that the different types of farming that is practiced all over the world, because the different types of situations, the different types of climatic conditions, all are responsible for the different types of farming. Now the first point that we are going to study, it is a shifting agriculture or the shifting farming. Now students, look at carefully. This is one of the most primitive types of agriculture. It is usually practiced in heavily forest regions. Farmers prepare the field by burning down patches of the forest. The ash from the burnt trees add to the fertility of the soil. This patch of land is cultivated till it starts losing its fertility. The farmers then abandon these plots of land and clear another patch of land cultivation. This form of farming is also called slash and burn agriculture. In India, it is practiced in the northeastern part where it is known as the jhum cultivation. It is also practiced in the Amazon basin and it's part of Southeast Asia. Rice, maize, cassia and topeka are some of the crops grown in this way. Okay students, now we are going to understand about the shifting agriculture. Shifting agriculture is it is a primitive type of farming. Actually now students, we are going to understand about the shifting cultivation. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की, तो ये प्रिमिटिव टाइप एग्रीकल्चर है. प्रिमिटिव टाइप मींस क्या हो गया? ये बहुत पुराने समय से इस तरीके की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमारे यहाँ या पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही है. अब हम लोग बात करते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या. ये अपना एक वर्ड है बेटा. जैसे हम लोग इस वर्ड पे अगर फोकस करें, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह. तो जब अगर हम लोग एंशियंट टाइम में जाएं, तो जो उस समय लोग फार्मिंग करते थे, तो हमेशा क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर खेती करने के लिए जाते थे. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज इन द हिली रीजन और द फॉरेस्ट रीजन. ये ज्यादातर इस तरीके की फार्मिंग हमें हिली रीजन में देखने को मिलता है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है या बहुत ज्यादा घने जंगल हैं. ओके, इसमें होता क्या है बेटा, इसमें जो फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जंगलों की कटाई पहले करते हैं. जितने एरिया में इनको अपनी खेती करनी होती है उस जंगलों की कटाई करते हैं. फिर उसके बाद से जो लकड़ियां बचती हैं, जो उनके पेड़ जो उनके पत्ते बचते हैं, उनको ये जला देते हैं. जलाने के बाद जो ऐश मींस जो राख बचती है, उसको उस जगह के एरिया के मिट्टी में, सॉइल में इसको मिक्स करते हैं, जिससे कि उस सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उपज क्षमता बढ़ती है. और फिर उसके बाद से वो यहाँ पर फार्मिंग अपनी स्टार्ट करते हैं और फिर वो अपनी उपज लेते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऐसे लोग फार्मिंग करते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर चेंज करते रहते हैं. अच्छा, चेंज क्यों करते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा फोकस डालते हैं. एक्चुअली ये जब 1 साल 2 साल उस लैंड पे खेती करते हैं, तो खेती करने के बाद उस जमीन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो जमीन में अनाज की उपज नहीं हो पाती है. जिसके लिए जो फार्मर्स होते हैं, जो हिली एरिया में होते हैं या फॉरेस्ट रीजन में होते हैं, वो यहाँ से दूर फिर कहीं
पे इस जमीन को तैयार करते हैं और खेती करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। कुछ जगहों पर सम ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न। कुछ जगहों के रीजन पे अगर हम लोग जाएं तो इसे हम लोग स्लैश और बर्न कहते हैं। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहने के पीछे ये कारण है कि इन खेतियों को करने से पहले, इन फसलों को उगाने से पहले खेतों को तैयार करना होता है, जिसके लिए स्लैश मींस पेड़ों की कटाई और बर्न फिर उसके बाद उनको जला देना, उनसे जो राख या ऐश प्राप्त होती है उसको सॉइल में मिक्स कर देना, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, उपज क्षमता बढ़ जाए। वहीं पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इस तरीके की जो इंडिया में खेती होती है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होती है। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं, आसाम की तरफ जाएं, जहां पे फॉरेस्ट रीजन है, जहां पर हिली रीजन है, जहां पे आदिवासी यानी कि ट्राइबल पीपल रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो इस तरीके की खेती करते हैं। तो दिस इज योर shifting agriculture. Now next point that we are going to cover about the subsistence farming. Now in the subsistence farming is practiced on a small plots of land with the farmer producing just enough crops to meet the needs of his or household. Usually there is not enough produce left over the sell. The farmer use simple tools like wooden plow for plowing the land and the sickle for harvesting the crop. Use the chemical fertilizer and high yielding seeds is a minimal as subsistence farmers cannot afford to buy these. Subsistence farming is practiced in large parts of India and Africa. Okay students, now we are going to focus on the subsistence farming. एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें तो सब्सटेंस फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जहां पे किसानों के पास बहुत कम जमीन होती है और वो जो होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल चीजों के साथ अपनी खेती को करते हैं। जैसे छोटी छोटे जमीन के टुकड़े जिनके पास है, जो आज भी जो अपने खेतों पे बैल और लकड़ी के हल से अपने खेतों की जुताई और बुआई का काम करते हैं, वो सिर्फ इतना ही अनाज उगा पाते हैं जिससे कि उनके खाने भर को पूरे साल को हो जाए, और इतना अनाज उनके पास नहीं होता है जिससे कि वो मार्केट में उसे बेच पाए। तो इसे हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सटेंस फार्मिंग उसे कहते हैं बेटा जो एक छोटे से प्लॉट पे एक फार्मर काम करता है और वो सिर्फ उतनी ही फसल को उगा पाता है जितनी कि उसके परिवार को पूरे साल में खाने की जरूरत होती है। उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है कि वो उसको मार्केट में बेच सके, और वो इस खेती को करने के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल करता है, लकड़ी के हलों का इस्तेमाल करता है, खेत की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करता है। उसके पास ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर होता है, ना तो कोई पेस्टिसाइड होता है, ना कोई इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब कोई भी वो मॉडर्न टेक्निक्स को नहीं यूज करता है। वो खाली अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करता है और अपने लिए फसल उगा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर द इंटेंसिव फार्मिंग। Intensive farming, understand student. In this type of farming, the plots and the lands are small, but the farmer uses fertilizers and the high quality seeds to get maximum yield out of the small plot. Irrigation, it is also practiced where necessary. The surplus produce is sold for profit. Intensive farming is practiced in the Southeast Asia where the farmer is small due to the dense population. Yet yields are high as a result of abundant rainfall and fertile soil. Rice is the main crop grown by this method. Okay, now just we are talking about the intensive farming. अब intensive farming क्या होता है बेटा? इंटेंसिव फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जहां पे प्लॉट्स तो छोटे होते हैं, जो खेती करने की जमीन होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन अपने मॉडर्न टेक्निक से और अपनी मेहनत से वहां पे क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो वहां पे सरप्लस फूड को, सरप्लस क्रॉप्स को उगा लेते हैं। सरप्लस मीन ज्यादा क्रॉप्स को अपने खाने भर का तो रखते ही हैं और साथ में बेचने के लिए भी वो उगा लेते हैं। उसके लिए वो कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं, जिससे कि
वो उनकी उपज क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, खेतों की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरीके की इंटेंसिव फार्मिंग हमें ज्यादातर उस एरिया में देखने पे मिलती है जहां पे पॉपुलेशन डेंस होती है, मतलब जहां पे जनसंख्या या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमें इस तरीके की फार्मिंग देखने को मिलता है। ओके, और इस तरीके के फार्मिंग से ज्यादातर जो फार्मर्स किस तरीके की क्रॉप को ग्रो करते हैं, राइस, यानी कि जो हमारी चावल की खेती होती है ज्यादातर ये उगाते हैं। अगर हम लोग एशिया की बात करें, जैसे हमारे यहाँ डेंस पॉपुलेटेड एरिया जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो यहाँ पे देखो बेटा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोगों के हिस्से में जमीनें कम आई, तो जब जमीनें कम आई तो उसके लिए उन्होंने उस पर मेहनत की, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज किया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया, उन्होंने मशीनों का यूज किया। इन सारे यूजेस से क्या हुआ, उनकी उपज क्षमता बढ़ गई, जिससे कि अब वो अपने खाने के लिए तो पूरे साल का अनाज रखते ही हैं, साथ में मार्केट में उसको बेचते भी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट that we are going to cover, it is the extensive or the commercial farming. Now extensive or commercial farming is characterized by huge farm size and a large number of inputs like fertilizers, machinery and irrigation. Now crops are grown on very large scale with the sole purpose of selling to earn profit. The farmers are modernized and crops are harvested using machines. The produce is transported immediately to market or to cold storage. Wheat and maize are main crops grown through the extensive methods. Extensive agriculture also includes the ranching. Ranching refers to the raising of livestock and very large farms. Now, extensive farming is practiced in a central part of USA, Brazil, Argentina, and parts of the Europe and China. Now, the extensive farming. Actually, बेटा जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है उसे हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब एक्सटेंसिव और कॉमर्शियल फार्मिंग को समझने के लिए अगर हम लोग सीधे तौर पे ये कहें कि ये इस तरीके की फार्मिंग होती है जिसमें सिर्फ किसान जो होता है अनाजों को उगा के मार्केट में बेच के पैसे कमाने के लिए इस तरीके की खेती को करता है। इसमें होता क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत बड़े ह्यूज फार्म्स के ओनर होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। वो इसमें सारी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, वो कंबाइन मशीन का यूज करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और वो खूब ढेर सारी क्रॉप्स को उगाते हैं जिससे कि वो मार्केट में उसको सेल आउट भी कर सके। उसके बाद एक वर्ड इसमें यूज हुआ है रेंचिंग। रेंचिंग मीन्स द मिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक्स एंड द क्रॉप्स। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसमें लाइव स्टॉक्स मतलब जानवरों का भी पालन होता है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इन सबको भी ये लोग पालते हैं, साथ में खेती भी करते हैं, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं। बिकॉज mainly the purpose behind the extensive farming or the commercial farming to earn the money. So now this type of farming is known as the extensive or the commercial farming. This type of farming mostly practiced in the countries like the USA, Brazil, Argentina and the parts of Europe and the China. Now the next point, that is the plantation farming. Plantation are very large farms where usually only one crop is cultivated. Plantation farming is also commercial in nature where they produce the sole profit. Plantations are common in tropical areas where the temperatures and the annual rainfall are high. In addition of huge investment of capital, they require the highly skilled laborers or plantations. Or as it takes the lease there or 4 years, the crops mature, the plantation owner has a wait for a long time to earn profit on his investment. But profits once they start coming in are usually high. Common plantation crops are rubber, cotton, coffee, tea, cocoa, sugarcane and oil palms. Now the next point that we are going to cover is the plantation farming. अब बेटा हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में समझते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे पेड़ों को लगाकर उनकी खेती करना। ओके, नाउ द इन द लास्ट पैराग्राफ नाउ वी हैव द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग लाइक द रबर ट्री, लाइक द कोकोआ, टी, कॉफी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग।
अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो खेती होती है प्लांटेशन की, यानी पेड़ों की जो खेती होती है, पौधों की जो खेती होती है, ये ऐसे क्लाइमेट एरिया में होती है जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है और जहां पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा रिसीव होती है। अब उसके बाद से एक्चुअली ये जो किसान जो फार्मिंग करते हैं, इसमें पहले शुरू में इन्वेस्टमेंट होता है, शुरू में वो काफी पैसा लगाते हैं और इनके खेती के लिए जो लेबर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड का मतलब उनको नॉलेज होती है कि हमें किस तरीके से पेड़ों को लगाना है, किस तरीके से उनसे प्रोडक्ट्स लेना है। कोई भी अनजान व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। अब फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक बार जब इनसे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तो ये किसानों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो अगर एक बार अगर हम लोग इसको देखें तो इट इज ऑल्सो द कमर्शियल फार्मिंग, बिकॉज द मेन मोटिव बिहाइंड दैट टू अर्न द मनी बाय द प्लांटेशन फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे the topic completed, the types of farming. Now in the next video session we are going to cover the types of crops. What types of crops are grown in all over the world. And students, today I am going to send a PDF of chapter number 3. All the questions, all the answers are given there, and fill in the blanks and true false and give the reasons also present in the PDF. So students, again I am telling you that all of you complete the copy work till chapter number 3, and after that completing of this chapter number 4 agriculture, I have sent the question answers of this chapter. Thank you.